میری گفتگو میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس بیماری کی وجہ سے آپ کو یقین ہے کہ اس کو نظر انداز کریں گے۔ طارق ضمیر صاحب الحمدللہ آپ نے ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ 25-30 سال سے زائد میں ان سے متعارف ہوں۔ پہلی میری ان سے ملاقات امریکہ میں ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری ملاقات نیپال میں ہوئی، اور جو محبت کا رشتہ وہ ایسا قائم ہوا کہ ہمیشہ برگ و بار لاتا رہا اور اس سے خوشبو پھیلتی رہی۔ تو جب یہ سویڈن میں سفیر ہوئے تو انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ سویڈن میں آئیں، یہاں بہت درد مند لوگ رہتے ہیں، بہت پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستانی ہیں، اور وہ آپ کے اس مشن میں یقیناً آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو ان کے اصرار پر میں 5-6 ماہ قبل بھی ادھر آیا، اور اب بھی 14 اگست کی تقریب کے سلسلے میں انہوں نے خصوصی طور پر دعوت دی۔ تو اس کے بعد مجھے ان نامساعد حالات کی وجہ سے تقریباً 1 مہینہ یہاں رہنا پڑا۔ اب تو لگتا ہے کہ یہ دوسرا گھر ہے سویڈن بھی۔ آپ لوگوں نے جس محبت سے اور جس کمال مہربانی اور توجہ سے مجھے علالت کے ان دنوں میں سہارا دیا، میں اور میری اہلیہ اس کے لیے آپ کو بہت ممنون ہوں۔ طارق ضمیر صاحب کے لیے جتنی محبت میں نے آپ کی نگاہوں میں دیکھی اور آپ کے الفاظ میں جتنی عقیدت اور جتنی اپریسیشن نظر آئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی شخص کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہو سکتا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہو شاید مگر ایسے بھی ہیں۔ طارق ضمیر ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو خوبصورت زندگی کی پہچان ہے، جو بہترین اخلاقی جو ویلیوز ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کسی انسان کو آپ نے اوج کمال پہ دیکھنا ہو تو طارق ضمیر کو دیکھنا چاہیے۔ ان کی کئی جہتیں میں سمجھتا ہوں، میں نے جب بھی ان کو دیکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا، جب بھی دیکھا تو جیال میں نو دیکھا ہے۔ تو ان کو ایک نئی جہت نظر آئی، ان کی ہیوملٹی، ان کی انکساری، ان کی علم دوستی، ان کی انسان دوستی، ان کا شاعری سے لگاؤ، ان کا تہذیبی سفر سے لگاؤ، کتاب سے محبت، اور ان لوگوں سے محبت جو ان کو کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بھلا کرنا چاہیے جو آپ کا بھلا کرنے کی حیثیت نہ رکھتے۔ تو اس اعتبار سے پھر انہوں نے پاکستان کی جس طرح سے نمائندگی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی کی جس طرح سے نمائندگی کی، یعنی یہ 2 طرفہ عمل ہے کہ سویڈن حکومت کے روبرو آپ کی نمائندگی اور پاکستانی قوم کی یہاں پر سویڈن میں نمائندگی۔ تو میں بہت زیادہ ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، ان کی محبت میرے دل میں ہے، اور یہ 1 مہینہ جو میں بیمار رہا انہوں نے مجھے اپنے گھر میں نہیں بلکہ اپنے دل میں جگہ دی، جس کے لیے میں ان کو باقی تمام لوگوں نے، یہ جو چہرے ہیں یہ میرے ذہن پہ نقش ہیں، یہ جو جیسے کہتے ہیں کہ میرے دل کی رفو گری ہوئی، تو اس رفو گری میں یہ سب نام لکھے ہوئے ہیں، اور میں یہ نام کبھی نہیں بھولوں گا کہ کس محبت اور کس توجہ سے آپ نے مجھے سہارا دیا۔ مجھے کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے میں لاہور میں ہی ہوں، صبح دوپہر شام ایک تانتا سا بندھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، پھول بھیج رہے ہیں، اور اس پھول میں محبت ہے، خوشبو ہے، اور ایک عجیب طرح کا ایک کیفیت ہے۔ 2-3 منٹ میں اخوت کے بارے میں کہنا چاہوں گا۔ میں مشکور ہوں جناب طارق ضمیر صاحب کا کہ انہوں نے اخوت
अखुवत को एक आम फहम नाम बना दिया स्वीडन में, और ये एक हाउस होल्ड नाम जैसे कह सकते हैं, हर शख्स को उन्होंने बताया। और जिस बेसाख्तगी से उन्होंने अखुवत के बारे में अपनी राय दी, अखुवत को अप्रिशिएट किया, अखुवत के विजन को, उसकी सोच को, इसकी मंजिल को, इसकी जद्दोजहद को, उसके ज़ेर व बम को, उसके शेर व फराज को वो बताते रहे और मैं खुद उनकी ज़ुबान से सुनता रहा। उसके लिए मैं समझता हूँ कि उनका सिला जो है वो खुदा के पास है, क्योंकि अखुवत ये दरअसल एक फ़लसफ़ा है। ये किसी शख्स का या कुछ अशख़ास की बनाया हुआ अदारा नहीं, बल्कि दरअसल एक फ़लसफ़े को दोहराने का अमल है। उस फ़लसफ़े का नाम है मुआख़ात। वो आपकी विरासत भी है, मेरी विरासत भी है, तारिक ज़मीर की विरासत भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ़ ले गए, तो उनकी मुअय्यत में जो असहाब थे, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई सहारा तलाश थी। तो आपने ये तसव्वुर पेश किया कि एक शख्स जो मदीना का रहने वाला है, वो एक शख्स जो मक्का से आया है, उसको अपना भाई बना, और इसकी बुनियाद जो है वो ईसार और कुर्बानी पे हो। कोई ज़ाती लालच, गरज, तमा वो ना हो। तो इस फ़लसफ़ा के नतीजे में वो लोग जो लुटे पुटे हुए आए थे, कहीं दामन थे, लेकिन इज़्ज़त और आबरू से ज़िंदा रहना चाहते थे, वो अरब के कामयाब तरीन ताजर बने। तो हम समझते हैं कि 1400 बरस के बाद भी ये फ़लसफ़ा उतना ही तरोताज़ा है, उतना ही खूबसूरत है कि इसको दोहराया जाना चाहिए। बदकिस्मती ये हुई कि हमने इसको महज एक तारीख़ी वाक़या समझकर किताबों में बंद कर दिया और ताकि निस्यां की ज़ीनत बना दी। फिर से खोलना चाहिए इन किताबों को, इन औरात को, और इन अल्फाज से फूटती हुई रोशनी को हिर्ज़-ए-जां बनाना चाहिए। तो हमने कहा कि पाकिस्तान में अगर 50% लोग हैव्स हैं, तो 50% हैव नॉट्स। इधर से एक शख्स को कहे कि क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं रात में रोशनी करूं। तुम आज से मेरे दोस्त हो, तुम्हारे गम मेरे हैं और मेरी खुशियाँ तुम्हारी। तो ये जो 50% हमें रियासत की ज़रूरत ही नहीं है। एक समाजी सतह पर भी हम गुर्बत को कम कर सकते हैं। तो जो कहते हैं कि हर चारागर को चारा गली से गुरेज था, वरना जो अपने दुख से बहुत लादवा न थे। तो गुर्बत के दुख इतने लादवा नहीं हैं, बस हम चारागरी से गुरेज करते हैं। तो अखुवत ये रिफ्लेक्शन है। तो जिस खूबसूरत तरीके से आपने अखुवत को समझा, हमारा साथ देने का वादा किया, तो मैं उसके लिए भी मशहूर हूँ। 10,000 रुपये का एक पहला कर्जा हमने खातून को दिया, और आज हम 50 अरब रुपयों के कर्जे ले चुके। निस्फ अरब रुपए की रकम मुआख़ात के इसी आलमगीर तसव्वुर की कहानी है, जिसमें ज़ात, मज़हब, रंग, नस्ल, सियासत, फ़िरका किसी किस्म का कोई तमीज़ नहीं। तो स्वीडन में मैंने ये जो एक महीना गुजारा, इसमें मैं सबसे बड़ा सबक मैंने यही सीखा कि इंसान कितना बड़ा है, और ये जो दो तरह के समाज हैं वो अगर ना हो तो कितना खूबसूरत मुआशरा तश्कील पाता है। तो ये 2-3 सबक मैं साथ लेके जा रहा हूँ। हम भी चाहेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा ही मुआशरा हो, ऐसा ही समाज हो कि एक शख्स जिसके पाँव नंगे हैं, जिसके कपड़े नहीं हैं, जो भूख की वजह से लागर है, जिसको ठोकर लगे तो कोई थामता नहीं है, वो भी अगर किसी बड़े अस्पताल में जाए तो उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाए जैसा मुल्क के हुक्मरानों के साथ किया जाए। मैंने ये बात बहुत दफ़ा दोहराऊंगा कि जिस डॉक्टर ने मेरी एंजियोप्लास्टी की, एंजियोप्लास्टी के बाद वो मुझे कहने लगा कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है।
बज़ाहिर आप पाकिस्तानी हैं, मैं आपसे कह सकता था कि आप अपने वतन में जाकर बाईपास सर्जरी करवाएं, लेकिन मैं स्वीडिश नहीं हूँ, मैं इस वक्त एक डॉक्टर हूँ, और उस डॉक्टर की हैसियत से मैं आपको वो मशवरा दूंगा जो मैं किसी भी इंसान को दे सकूँ। मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तानी नहीं है, स्वीडिश नहीं है, एक शख्स है जिसकी ज़िंदगी मुझे बचाना है। तो मैं हैरान रह गया कि उस शख्स ने ये कहा कि मैं वही तरीका इलाज आपके लिए तजवीज़ करना चाहूँगा जो मैं एक स्वीडिश के लिए करना चाहूँगा। तो ये वो चंद चीज़ें, इंसानियत से मोहब्बत और मोहब्बत से बढ़कर ईसार और कुर्बानी, ये जो जज्बे हैं जो मैं यहाँ से लेके जाऊँगा इंशाअल्लाह। और आपके तावन से, आप में से अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ का अखलाकी मेयार बहुत आला है, असल इस्लाम यहाँ पर है, तो यही अखलाकी मेयार इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, मुझे पाकिस्तान के उफ़क़ पर यही अखलाकी मेयार तुलू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरी चीज़, हमने एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा है, उसके बारे में बात करूँगा। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें तालीम जो है उसके दाम न लगे, इल्म जो है, हिकमत जो है, दानिश जो है, ये पैगम्बराना काम है। खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए। इंसान खुदा के मकासद की तकमील का एक ज़रिया है। तो खुदा कहता है कि इस दुनिया को और खूबसूरत बनाओ, इल्म हासिल करो। हमने उस इल्म के दाम लगा दिए। तो हम एक ऐसा अदारा बना रहे हैं पाकिस्तान में जिसमें तालिब इल्मों से कोई फ़ीस नहीं ली जाए, और उन्हें कहा जाएगा कि पहले कमरे जमात में जाओ, 20 साल बाद जब इस काबिल हो जाओ कि इस समाज को कुछ लौटा सको, तो फिर याद करना कि किसी ने तुम्हारे साथ मोहब्बत का और ख़ुबत का रिश्ता कायम किया था, फिर अगर दिल करे तो वो फ़ीस अदा कर देना। तो इसकी तामीर के लिए हमने एक छोटी सी तहरीक चलाई है। मुझे लगता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में स्वीडन इंशाल्लाह अलमबरदार बनेगा। एक एक ईंट हम बेच रहे हैं, एक ईंट की कीमत सिर्फ 1000 रुपये है। 5 लाख ईंटें अगर हम बेच जाएँ तो 50 करोड़ रुपए की रकम हम इकट्ठी करेंगे। 2.5 लाख ईंटें बेच चुकी हैं। एक औरत का छोटा सा किस्सा, राजनपुर से उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरी उम्र 70 बरस है, मैंने सुना है कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जिससे लोगों से फ़ीस नहीं ली जाएगी। मेरा बच्चा तो कोई उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेगा, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान का हर बच्चा मेरा बच्चा ही। और उस औरत की आंखों में यकीनन नमी होगी जब उसने लरसते हुए लहजे में मुझे ये कहा कि मेरे पास 1000 रुपया नहीं है कि मैं एक ईंट खरीद सकूँ, क्या आप मुझे 500 रुपये की आधी ईंट दे सकते? मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम भी उन लोगों की फहरिस्त में लिखा जाए जो इस मुल्क को तामीर करने वाले। तो यूँ हमने 2.5 लाख ईंटें बेची हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप सिर्फ इतना काम करें, कम से कम एक और शख्स को बता दें कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की तामीर में अगर आप अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ईंट आप खरीद कर एक नक्श कायम कर सकते। तो मैं दोबारा से मशकूर हूँ कि आपने मुझे भी इस खूबसूरत तकरीब में मदऊ किया। तारिक ज़मीर साहब की बातें होती हैं, होती रहेंगी, उस जैसे लोग बहुत कम हैं। मैं एक दोस्त की हैसियत से उनकी इज़्ज़त करता हूँ, एक इंसान की हैसियत से, एक प्रोफेशनल की हैसियत से, एक कैरियर डिप्लोमेट की हैसियत से। तो आपकी खुशकिस्मती है कि वो 3 साल वो आपके पास रहे। मैं दुआ करता हूँ कि उनके साथी भी उनकी इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान का नाम बुलंद करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जितना नाम बुलंद होता है
ہم سب کی اس میں ہی عزت ہے، آبرو ہے، تاکہ ہم دنیا میں ہمارے نام کے ارد گرد جو جہالت اور تعصب کے نقوش کسی نے لکھ لیے وہ دور ہو جائیں۔ پاکستان ایک بہترین سماج، بہترین معاشرہ، بہترین قوم کی حیثیت سے ہمارے سامنے، ہم دنیا کے سامنے اس کو پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو یہ اپنا خوشیاں دے اور آپ یہاں اپنا مقام پیدا کریں، اور جو رشتہ جو کہتے ہیں کہ بڑا درد کا رشتہ، یہ دل غریب سے ہی تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے، تو پاکستان کے نام پر ہم سب جو چلے آتے ہیں، خدا کرے کہ یہ رشتہ قائم رہے۔ آپ کے چاہنے والے، آپ کے عزیز و اقارب، وہ بے شک وہاں ہیں، بے شک جہاں ہیں، وہ ایک بہترین کامیاب، خوشگوار اور خوش و خرم زندگی سے ہمکنار ہوں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے شکریہ۔